નમસ્કાર, જય જીતેન્દ્ર. પર્યુષણ વ્યાખ્યાનમાળા 3 વીરમતીબેન ફકીરચંદ શાહ ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ અને અમારા મિત્ર ભદ્રેશભાઈ શાહ આયોજિત સુરત જૈન મંડળના ઉપક્રમે પર્યુષણ વ્યાખ્યાનમાળા 3માં આજે બીજો દિવસ, યાને 16મી ઓગસ્ટ 2022. આજે આપણી સાથે બે પ્રબુદ્ધ વક્તાઓ છે. ડોક્ટર દિલીપભાઈ સરાવગી આપણી સાથે મુંબઈથી જોડાયા છે અને પદ્મશ્રી ડોક્ટર સુધીર શાહ આપણી સાથે અમદાવાદથી જોડાનાર છે. માનનીય ભદ્રેશભાઈ શાહ, મિત્રો આપ જાણો છો તે પ્રમાણે તેઓ સુરતના અત્યંત પ્રતિષ્ઠિત બિલ્ડર છે. એ સિવિલ એન્જિનિયર એન્ડ આર્કિટેક્ટ અને સુરતની અત્યંત પ્રતિષ્ઠિત એવી સરદાર વલ્લભભાઈ SVNIT નેશનલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ટેકનોલોજીના તેઓ ગ્રેજ્યુએટ છે અને ત્યાંનો એલમનીના તેઓ સ્થાપક પ્રમુખ પણ છે. અનેક સંસ્થાઓની સાથે તેઓ સંકળાયેલા છે અને અનેકવિધ પ્રવૃત્તિઓ, ખાસ કરીને ધાર્મિક પ્રવૃત્તિઓ અને જીવદયાની પ્રવૃત્તિઓ એ એમની ટોપ પ્રાયોરિટીઝ રહી છે. શ્રી ભદ્રેશભાઈ શાહ એમના માતાજી અને પિતાજીના નામના આ ટ્રસ્ટ દ્વારા આ પ્રવૃત્તિઓ કરે છે. શ્રી ભદ્રેશભાઈને જે સ્ક્રીન પર ઇન્વાઇટ કરીએ અને એમને વિનંતી કરીએ કે ભદ્રેશભાઈ આપ હાજર રહેલા સૌનું અને ખાસ કરીને આપણા વક્તાશ્રીનું અભિવાદન કરો, એમનું સ્વાગત કરો. શ્રી ભદ્રેશ શાહ, પ્લીઝ. સભાની શરૂઆત કરતા પહેલા આપણે નવકાર મંત્રના શુભ રેટનથી વાતાવરણમાંથી પ્રભુના આશીર્વાદ મેળવવાનો પ્રયત્ન કરીએ. ઓમ નમો અરિહંતાણમ, ઓમ નમો સિદ્ધાણમ, ઓમ નમો આયરિયાણમ, ઓમ નમો વજ્રાયાણમ, નમો લોએ સવશાહૂણમ, એશો પંચનમુક્કારો, સૌપાવપણાશણો, મંગળાનંચ સૌવેશિ, પરમં હવૈ મંગલમ, ઓમ નમો અરિહંતાણમ. પ્રણામ, નમસ્કાર મિત્રો, ભાઈઓ, બહેનો અને બાળકો. આ સતત ત્રીજી પર્યુષણ વ્યાખ્યાનમાળા સુરતમાં આપ સર્વેનું અને ખાસ કરીને આજના બે પ્રબુદ્ધ અત્યંત વિદ્વાન વક્તાઓનું હું ઉષ્માભર્યું સ્વાગત કરું છું, અભિવાદન કરું છું. ડોક્ટર સરાવગી અને શ્રી સુધીરભાઈ જૈન, કે જેનો વિશેષ પરિચય આપણા નરેશભાઈ આપશે, પરંતુ મને ડોક્ટર દિલીપભાઈની એક વાત બહુ સ્પર્શી ગઈ છે, ડોક્ટર દિલીપ સરાવગીની, અને હું સમજી નથી શકતો. એનું રહસ્ય માટે આપણે એક આખી જુદી સેશન રાખીશું કે એક માણસ એમની એક આ નાનકડી જિંદગીમાં 9 ડિગ્રીઓ કેવી રીતે મેળવી શકે અને તેમાં પણ પાછી 7મા ગોલ્ડ મેડલ કેવી રીતે હાંસિલ કરી શકે. ફેન્ટાસ્ટિક. આ એક રાજની વાત છે. એ રાજ ક્યારેક આપણે એમની પાસે ખોલાવડાવીશું. અને ડોક્ટર દિલીપભાઈને તો આપ જાણો છો કે તેઓ પદ્મશ્રી છે. આમ તમારે એમની ન્યુરોલોજિસ્ટ તરીકે જો કામ હોય તો એમની એપોઇન્ટમેન્ટ જોઈતી હોય તો 3 મહિના લાગે, પરંતુ આપણને અહીંયા આપણી સામે હાજરા હજુર છે. બાકી 3 મહિના સુધી તમને અમદાવાદમાં ન્યુરોલોજિસ્ટ ડોક્ટર સુધીર શાહ, પદ્મશ્રી સુધીર શાહની એપોઇન્ટમેન્ટ ના મળે. એવા બંને ગજબના આપણા આજના વક્તાઓ, વિદ્વાન વક્તાઓ, પ્રબુદ્ધ વક્તાઓનું ફરી એકવાર સ્વાગત છે. આપ સર્વેનું પણ ખૂબ ખૂબ હાર્દિક ઉષ્માભર્યું સ્વાગત છે. મિત્રો, આજથી 3 વર્ષ પહેલા જ્યારે કોરોનાનો વિપરીત કાળ હતો, ત્યારે ઘર બેઠા બહુ વર્ષથી જે મારા વિચારમાં દોડ્યા કરતું હતું પણ અમલમાં નહોતું મૂકી શકાતું, એ પર્યુષણ વ્યાખ્યાનમાળા ને ચરિતાર્થ કરવાનો સમય આવ્યો અને ઉપરવાલાની ઈચ્છા હશે કે ઝૂમ મીટિંગ ઉપરથી એની આપણે શરૂઆત કરી. પહેલે વર્ષે 15 વક્તા, બીજે વર્ષે 16 વક્તા
અને આજે ત્રીજે વર્ષે સતત આપણી સાથે 16 વક્તા, એમ કુલ્લે જો આપણે ગણીએ તો 16 તાલી 48 47 જેટલા આપણને પ્રબુદ્ધ વક્તાઓનો એ મળ્યો છે. એમાંથી કેટલાક રિપીટ આપણે કર્યા છે, તો પણ 30-40 ની વચ્ચે વક્તાઓ કે જે રાષ્ટ્રીય અને આંતરરાષ્ટ્રીય ક્ષેત્રના અથવા તો કક્ષાના કહી શકાય તેવા વક્તાઓ કે જે આપણને મહારાજ સાહેબ પર્યુષણમાં વ્યાખ્યાન તો જરૂર આપે છે, પરંતુ એમને કલ્પસૂત્ર પર વ્યાખ્યાન આપવું પડતું હોય છે. એમને જે આદેશ હોય છે ધર્મનો તે પ્રમાણે આપવું પડતું હોય છે. જ્યારે આપણે આવી વ્યાખ્યાનમાળામાં કોઈ પણ સબ્જેક્ટ, માનવતાનો, માનવ ધર્મનો અને જૈન ધર્મનો કોઈ પણ વિષય ઉપર આપણે એમની ઊંડી વિદ્વતાનો લાભ લઈ શકીએ છીએ. આપણી જોડે જૈન, દિગંબર જૈન, શ્વેતાંબર જૈન, તેરાપંથી જૈન અને સ્થાનકવાસી જૈન, એ ચારે ચારના વક્તા આ વર્ષે આપણને કંઈક ને કંઈક સરસ વિષય પર પ્રકાશ પાડશે. આ ઉપરાંત રમઝાનભાઈ હસણિયા જેવા મુસ્લિમ અત્યંત મૃદુ અને નમ્ર અને જબરજસ્ત જૈન વિદ્વાન એવા રમઝાનભાઈ હસણિયા, કે પછી આપણે આ વર્ષે આપણે જોડ્યા છે પદ્મશ્રી યઝદીભાઈ કરંજિયા. ફર્સ્ટ ટાઈમ કોઈ પણ પર્યુષણ માળામાં, આ પર્યુષણ માળા મુંબઈમાં 100 વર્ષથી ચાલે છે, અમદાવાદમાં 90 વર્ષથી ચાલે છે અને સુરતમાં માત્ર 3 વર્ષની છે આ પર્યુષણ માળા, પણ કોઈને આજ દિન સુધી પારસી વક્તા અને તે પણ પદ્મશ્રીનો લાભ નહીં મળ્યો હોય. આપણે શનિવારે પારસી વક્તા પદ્મશ્રી કે જેઓ રમૂજના બેતાજ બાદશાહ છે અને છતાં પોતે પ્રોફેસર છે, બહુ ઊંડું જ્ઞાન ધરાવે છે, તેમને સાંભળીશું. એટલે પદ્મશ્રી, 3 પદ્મશ્રી, 4 થી 5 ડોક્ટર, 4 થી 5 પ્રોફેસર્સ અને તમામ વર્ગમાંથી આવતા લોકો આ વ્યાખ્યાનમાળામાં જોડાયા છે. મિત્રો, આ પર્યુષણ વ્યાખ્યાનમાળા અમારી એક પ્રવૃત્તિ છે. અમે આવી મારા માતૃશ્રી અને પિતાશ્રીના નામના વીરમતીબેન ફકીરચંદ શાહ ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ અને મારું પોતાનું ફાઉન્ડેશન ભદ્રેશ શાહના ફાઉન્ડેશનના નામથી અનેકવિધ પ્રવૃત્તિ કરીએ છીએ. એમાં છેલ્લા 28 વર્ષથી 28 વર્ષથી સતત અમે સમગ્ર દક્ષિણ ગુજરાતમાં અને છેલ્લા 3 વર્ષથી સમગ્ર વિશ્વમાં ધ સુપર સ્પીકર એન્ડ ધ સુપર કલ્ચરલ કોન્ટેસ્ટ નામની સ્પર્ધાઓ, કે જે 20 કરતા વધુ સ્પર્ધાઓ નવેમ્બર-ડિસેમ્બરમાં યોજાય છે, તે 2 મહિના સતત કરીએ છીએ. અને એમાં અત્યાર સુધીમાં લાખો વિદ્યાર્થીઓએ, શિક્ષકોએ અને સ્કૂલ કોલેજના વિદ્યાર્થીઓએ 4 સેક્શનમાં પ્રાઇમરી, સેકન્ડરી, હાયર સેકન્ડરી અને કોલેજ અને ઓપન વિભાગમાં ભાગ લીધો છે. અને અમે લાખો પ્રાઇઝીસ, હજારોની સંખ્યામાં એવા વિદ્યાર્થીઓને પ્રાઇઝીસ આપ્યા છીએ. ત્યાર પછી અમે પહેલા જૂન-જુલાઈમાં યોગાસન ચેમ્પિયનશિપ યોજીએ છીએ. ત્યાર પછી આપણો વિસરાતો જતો સંસ્કૃતિ ગરબો, ઓરિજિનલ ગરબો જે પાર્ટી પ્લોટના દૂષણ વિનાનો, તેની સ્પર્ધાઓ યોજીએ છીએ. ત્યાર પછી રંગોળીની ટ્રેનિંગ કેમ્પ, રંગોળીની સ્પર્ધા અને રંગોળીનું પ્રદર્શન સુરત ખાતે યોજીએ છીએ. ત્યાર પછી ધ સુપર સ્પીકર જે મેં તમને વાત કરી તેમાં લિટરેચર સાઇડ અને કલ્ચરલ સાઇડની ઘણી બધી સ્પર્ધાઓ યોજીએ છીએ, મોર ધેન 20. અને ત્યાર પછી છેલ્લો અમારો ધ સુપર સમર કેમ્પ હોય છે. અને ત્યાર પછી હમણાં છેલ્લા કેટલાક વર્ષોથી આપણે આ જ્યારથી પર્યુષણ વ્યાખ્યાનમાળા શરૂ થઈ છે ત્યારથી જૈન બાળકો, જૈન વિદ્વાનો, જૈન યુવાનોને પ્રેરણા મળે તેટલી જે રીતે સુપર સ્પીકર યોજાય છે, એ જ રીતે આગલા અઠવાડિયામાં, આ વ્યાખ્યાનમાળાના આગલા અઠવાડિયામાં જૈન સુપર સ્પીકર વ્યાખ્યાન, જૈન સુપર સ્પીકર કોમ્પિટિશન્સ આપણે હોલ્ડ કરીએ છીએ. એટલે આમ એક અનેકવિધ પ્રવૃત્તિ છે. આ ઉપરાંત અમે સુરતમાં વિશ્વ દર્શન કરતા મને લાગ્યું કે સુરતમાં પણ હેરિટેજનો ખજાનો છે, પણ કોઈનું ધ્યાન નથી. આપણા દેરાસરો 100 થી 1000 વર્ષ જૂના છે, કે જેમાં અદ્ભુત કળા, કારીગરી, આર્ટ, આર્કિટેક્ચર. બીંગ અ સ્ટુડન્ટ ઓફ આર્કિટેક્ચર, એન્જિનિયરિંગ એન્ડ કન્સ્ટ્રક્શન, આઈ નો કે આ કેટલું અદ્ભુત વસ્તુ છે કે જેને લોકો માત્ર દર્શન પ્રભુના દર્શન કરવા સિવાય જેનું કોઈના પર ધ્યાન નથી. એવી વસ્તુઓની એક લિંક બનાવી અને એની એક વોક તૈયાર કરી 3 કલાકની, ને એમાં 1 કલાક મારું ઓરિએન્ટેશન લેક્ચર હોય કે જેમાં સુરતનો ઇતિહાસ, ગુજરાતનો ઇતિહાસ, જૈન દર્શનનો ઇતિહાસ, જૈન વ્યવસ્થા, એ બધાનું લેક્ચર કરીને એ હેરિટેજ વોક યોજીએ છીએ. આપ બધાને આમંત્રણ છે અમારી બધાની આ પ્રવૃત્તિઓમાં. ફરી એકવાર આપણે લંબાણથી વાતો કરીશું. આજે બહુ શોર્ટમાં ખાલી કહી છે, પણ આપને હું ખાસ એક જણાવવાની નમ્ર વિનંતી કરું છું
કે ગયા વર્ષે અત્યાર સુધી મારા મમ્મી આ વ્યાખ્યાનમાળામાં પહેલે વર્ષે મારી જોડે હાજર હતા. આ બધી પ્રવૃત્તિમાં એ પ્રેરણા સ્ત્રોત હતા. આજે આપણી વચ્ચે નથી અને તેના નામથી ઘણી બધી પ્રવૃત્તિઓ અમે જે ચાલતી હતી તે ઉપરાંત શરૂ કરી છે. તેમાંની એક છે વીર પ્રીતિ ભગવાન મહાવીર એનિમલ કેર સેન્ટર, કે જેમાં કોઈ પણ ઘાયલ પશુ પક્ષીને અમે આપણે એમ્બ્યુલન્સ દ્વારા અમારા સેન્ટર પર લાવી અને એને ઓપરેશનથી માંડીને દવા દારૂથી માંડીને એને જરૂર પડે તેટલો વખત અમારે ત્યાં 40 જેટલા જુદા જુદા પાંજરા ઓપન અને ક્લોઝ બનાવ્યા છે. જરૂર પડે તે પ્રમાણે એમાં રાખી અને પછી એમને મુક્ત કરી દઈએ છીએ. અને આ પર્યુષણ વ્યાખ્યાનમાળાનો એક હેતુ એ પણ છે કે આવી જે ઉદાત્ત કાર્ય કરે છે તેવી સંસ્થાઓને માટે કોઈક ને કોઈક પ્રકારનું નાનું મોટું ફંડ એકત્રિત કરી અને એમને આપણે મદદરૂપ થવું. એટલે આ પર્યુષણ વ્યાખ્યાનમાળા દ્વારા આપણે એનો 5 લાખ રૂપિયાનો ટાર્ગેટ રાખ્યો હતો. એ ભગવાન મહાવીર એનિમલ કેર સેન્ટરનો, વીર પ્રીતિ ભગવાન મહાવીર એનિમલ કેર સેન્ટરનો, તેને બદલે આપણે લગભગ 5 લાખથી પણ ઘણા વધારે 15 લાખ રૂપિયા જેવા રકમ આપણે ઉઘરાવી અને એ એનિમલ કેર સેન્ટરને આપી શક્યા છે. એને આગલે વર્ષે આપણે ભરતભાઈ શાહની છાંયડો નામની સંસ્થાની ઘણી બધી હોસ્પિટલો અને આરોગ્ય સેન્ટરોને આપણે નાનકડો ટાર્ગેટ 2.5 લાખનો રાખ્યો હતો, તેના કરતા વધારે આપ્યા હતા. આ વખતે આપણે ફરી એકવાર ટાર્ગેટ રાખીએ છીએ કે વીર પ્રીતિ ભગવાન મહાવીર એનિમલ કેર સેન્ટર, ભરતભાઈની છાંયડોની બધી જુદી જુદી પ્રવૃત્તિઓ કે જેના માટે અમને એની ટ્રાન્સપેરન્સી બાબતની 100%ની ખબર છે કે એના જેટલી ટ્રાન્સપેરન્ટ વસ્તુ નથી ને એના જેટલા પૈસા સીધા દર્દીઓના અને જરૂરિયાતમંદોના હાથમાં જતા નથી. અને એવી જ એક ત્રીજી સંસ્થા છે અને તે સંસ્થા રસ્તે રઝળતા ગરીબોને અથવા તો રસ્તે રઝળતા કે જેને સૂઝબૂઝ નથી તેવા લોકોને લઈ આવી અને એમને ઘણા બધો વખત રાખીને એમને એકદમ સ્વસ્થ સાજા અને સુંદર તંદુરસ્ત કરીને એમનું ઘર શોધી અને એમને ઘરે પહોંચવામાં મદદ કરે છે. અને ઘર ન મળે તો એના યોગ્ય આશ્રય સ્થાનની અંદર એમને મૂકે છે. આ 3 સંસ્થાઓ માટે અને એના જેવી સંસ્થાઓ માટે આ પર્યુષણ વ્યાખ્યાનમાળાનું જે ગ્રુપ છે તે ગ્રુપની અંદર જરૂર જે કંઈ તમારી ઈચ્છા વર્ષ દરમિયાન જ્યારે પણ થાય ત્યારે લખાવી શકો છો. આપને ખાસ મારું 2 હાથ જોડીને નમ્ર વિનંતી છે કે આપણે સાથે સાથે કંઈક કામગીરી પણ કરીએ, કંઈક લોક સેવાનું કામ પણ આની સાથે સાથે કરીએ, એ પણ એનો હેતુ છે. તો આપ બધા એમાં ઉદાર હાથે હાથ લંબાવજો. અને આપ સર્વેનું ફરી એકવાર સ્વાગત છે. હું નરેશભાઈને કે નરેશભાઈ એટલે અમારા સુરતના એ કલ્ચરલ અને લિટરેચરના એમ્બેસેડર છે એવું કહું તો ખોટું નહીં. એ તો તમને એમના સભા સંચાલનથી ખ્યાલ આવી જશે. પણ એ સૌ બહુ જ સરસ નાટ્યકાર છે, લેખક છે, ડાયરેક્ટર છે, એક્ટર છે, સાહિત્યના બહુ ઊંડા ખેડાણ કરતા છે અને એમને ઘણી બધા પુસ્તકો અને ઘણી બધી વસ્તુઓમાં એમને ખાસ કરીને ફિલ્મી ગીતો અને ફિલ્મી માહિતીઓ વિશે પણ એ સુરતના એન્સાઇક્લોપીડિયા છે એવું કહું તો ખોટું નહીં. એવા નરેશભાઈ શાહને હું વિનંતી કરીશ કે તેઓ હવે સભાનું સંચાલન કરે અને એમના હાથમાં દોર લઈ લે. આભાર આપ સર્વેનો. થેન્ક યુ વેરી મચ ભદ્રેશભાઈ, આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર. મારા માટે બહુ બધા સારા શબ્દો વાપર્યા એ બદલ પણ આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર. મિત્રો, આપણા આજના પ્રબુદ્ધ વક્તા ડોક્ટર દિલીપ સરાવગી સર આપણી સાથે જોડાયેલા છે. હું આપને એમનો એક નાનકડો પરિચય આપવા માંગુ છું. ડોક્ટર દિલીપ સરાવગી સર એ મુંબઈના કમ્પ્યુટર પ્રોફેશનલ છો. આપે 9 જેટલી જેનો ઉલ્લેખ ભદ્રેશભાઈએ કર્યો, એમણે પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએટ ડિગ્રી દેટ ઇઝ પીજી કર્યું છે અને એમાં 7 તો એમણે ગોલ્ડ મેડલની સાથે પસાર કરી છે. ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ અને ICAI, ICWAI, CSI જેવી અનેક સંસ્થાઓમાં અનેક ટેકનોલોજીકલ, ફિલોસોફિકલ અને મેનેજમેન્ટ વિષય પર આપના સંખ્યાબંધ પેપર્સ આપે રજૂ કર્યા છે. મેનેજમેન્ટ બાય થોટ્સ પ્રોસેસ, ઇનવિઝિબલ વર્લ્ડ ઓફ ધી સબટલ particles, techniques and effects of the positive thinking અને ક્રિએટિવ વિઝ્યુલાઇઝેશન જેવા આપ જુઓ કે કેટલા રસપ્રદ વિષયો છે અને એ કેટલો અભ્યાસ માંગી લે તેવા વિષયો છે. એના પર સરે સઘન રિસર્ચ વર્ક કર્યું છે. તેઓ ઈ-કોમર્સ જેવા ટેકનોલોજીકલ વિષયના ટોચના 10 નિષ્ણાતોમાંના એક છે. તેમને ઇંગ્લેન્ડની
બકર્સ યુનિવર્સિટી દ્વારા પ્રોફેશનલ સ્કિલ માટે માનદ ડોક્ટરેટનું સન્માન પણ આપવામાં આવ્યું છે. તે ઉપરાંત આપને જૈનિઝમ, પ્રેક્ષા મેડિટેશન, પ્રાણિક હિલિંગ અને આર્ટ ઓફ લિવિંગની પ્રેક્ટિસ ઓફ મેડિસિનના માટે ઊંડાણથી એમણે અભ્યાસ કર્યો છે. આવા ડૉક્ટર દિલીપ સરાવગે સર આપણી સાથે છે. આપણે એમનું હાર્દિક અભિવાદન કરીએ અને સરને વિનંતી કરીએ કે આપના વિષયનો આપ આરંભ કરો. અમે આપને સાંભળવા માટે આતુર છીએ. જય जिनेन्द्र, डॉक्टर दिलीप सरावगी सर. आराध्य देव के चरणों में सत सत वंदन। आइए विषय के विश्लेषण के पहले भगवान महावीर हमारे आगम पुरुष की अभिवंदना करते हैं एक पद्य आगम से, और फिर गुरु वंदना करते हुए हम विषय की तरफ चलेंगे। से सवदंसी अभिभूयनानि, से सवदंसी अभिभूयनानि, नीराम गंधे धियमं चियप्पा, अनुत्तरे सवजंगंसि विज्जम्, गंथा अतीते अभय अनाऊ। भगवान महावीर के चरणों में कोटि से वंदन। तीर्थंकर के प्रतिनिधि हमारे गुरु, हमारे आचार्य श्री महाश्रवण जी और शेष सभी जैन धर्मों में सभी आचार्य, सब भगवंत और विशेषकर परम पूज्य गच्छाधिपति आचार्य श्रीमद विजय नित्यानंद सुरेश्वर महाराज साहब, जिनकी प्रेरणा से ये पर्युषण व्याख्यान माला प्रारंभ की गई है, मैं उन सबको वंदना करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और यही मंगल कामना करता हूँ कि सभी साधु संतों भगवंतों का आशीर्वाद हम सबको हमेशा प्राप्त होता रहे। मेरा फर्ज बनता है भद्रेश भाई को बहुत बहुत साधुवाद देने के लिए कि वो इतना एक सुंदर कार्यक्रम कर रहे हैं, जीव दया का कार्य कर रहे हैं। कभी कार्यों की सूची उन्होंने बताई और उसके साथ साथ ये पर्युषण के पहले ये जो प्रोग्राम करते हैं जैनिज्म के अलग अलग विषयों पे, और उन्होंने मुझे मौका दिया कि ऐसे पर्युषण व्याख्यान माला में कुछ एक विषय पे मैं अपने भी विचार प्रस्तुत करूं। मैं सभी बाकी अन्य वक्ताओं का सहर्ष अभिवादन करता हुआ अपने विषय की तरफ चलता हूं। मुझे विषय दिया गया जैनिज्म द्वारा सुखी जीवन जीने की कला। हर व्यक्ति सुखी जीवन चाहता है, कोई नहीं चाहता कि वो किसी भी दुख से उसको गुजरना पड़े, लेकिन सुखी जीवन जीने का ये दुखम काल है। पांचवा आ रहा है, कलयुग है। जब हम कहते हैं दुख तो रहेगा ही, तो इस दुख की घड़ी में भी, इस दुख के समय में भी, इस दुखम काल में भी हम कैसे सुखी रह सकते हैं, इसकी भी एक कला है, इसकी भी एक कला है। और वो कला हमें मिलती है जैनिज्म के द्वारा। हमें गर्व है उस जैन शासन पे, हमें गर्व है उन भगवान महावीर की वाणी पे, जिन्होंने करीब 2600 वर्ष पहले ही आगम वाणी के द्वारा हमें बता दिया था कि ये पंचमारा आने वाला है। और उस समय हम क्या करें, भगवान महावीर की वाणी की कौन सी पद्धति को, किस बात को हम अपने जीवन में उतारे, जिससे कि हमारा ये जो दुखम काल है वो अपने आप सुखी जीवन को हमारे सामने प्रेषित कर दे। हम ऐसी कोई कलात्मक जीवन की जिए, ऐसी कोई कलात्मक जीवन धारा से गुजरे कि हमारा जीवन सुखी हो जाए, हमें उस दुख से निजात पा जाए। आइए तो भगवान महावीर के
उन सब कुछ बिंदुओं को जो आगम वाणी से लिए हुए हैं, मैं आपको बताता हूं कि वो कौन से कलात्मक पद्धतियां हैं। इसके पहले एक थोड़ी सी बात समझ लें। हर चीज को जीतने के लिए अगर कोई एक गेम भी है, तो अगर हम उसके नियम जानते हैं तो हम वो गेम जीत जाएंगे। अगर क्रिकेट में जाते हैं और क्रिकेट खेलना आता है, क्रिकेट के नियमों को हम जानते हैं, तो निश्चय रूप से ही हम सचिन तेंदुलकर की तरह बन के गेम को आगे बढ़ा लेंगे, जीत जाएंगे, भारत रत्न भी बन सकते हैं। और अगर खेल के नियमों को नहीं जानेंगे तो कभी सर फूटेगा, कभी पैर टूटेगा, क्योंकि हमें मालूम नहीं। जीने के लिए भी कुछ नियम होते हैं जिसको हम बोलते हैं नियमा। हर प्रकृति के कुछ नियम होते हैं। अगर उन नियमों को अगर हम जान लें, जैनिज्म क्या करता है, उन प्राकृतिक नियमों को हमें समझा देता है। कोई जादू नहीं है। अगर हम उन नियमों को जान लेते हैं कि जीने की कला के क्या नियम है, वो कलात्मक सूत्र क्या क्या है, तो जीवन सुखदायी। और जब तक उन पद्धतियों को, जब तक उन कलाओं, कलात्मक बिंदुओं को, पद्धतियों को, उन सूत्रों को हम नहीं जानते हैं, तब तक जीवन तो दुखी रहेगा ही। तो आज आइए उस कला को समझते हैं कि जैनिज्म उस कला को हमें कैसे बताता है। वो प्रकृति के क्या नियम है जिसको जैन हमारे सामने, जैनिज्म जिसको कहते हैं जिनवाणी, कि जिनवाणी के द्वारा हम उन प्राकृतिक नियमों को समझते हैं, जानते हैं, और उनको अगर अपने जीवन में उतारे तो हमें दुख का सामना नहीं करना पड़ेगा। कुछ बिंदु मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, समय जो भी है। सबसे पहला देखिए, कोई दुख नहीं चाहता, कोई ये भी नहीं चाहता कि उसका वध हो। एक शब्द आता है, सव्वे पाणा न हंतव्वा, सव्वे पाणा न हंतव्वा, कि कोई भी प्राणी वध्य नहीं है, कोई भी प्राणी दुख नहीं चाहता। तो दुख नहीं चाहता तो क्या करे? जिनवाणी क्या कहती है? अगर हम कोई तरह का दुख नहीं चाहते, दुख का बंधन नहीं चाहते, तो जिनवाणी कहती है, भगवान महावीर का पहला सूत्र है, दुख देना ही दुख पाना है। क्योंकि कोई प्राणी वध्य नहीं चाहता। अगर हम किसी को दुख न देंगे, अगर अपनी तरफ से किसी भी प्राणी को, मैं कहूंगा 84 लाख जीव योनि को या 6 काय के जीवों की किसी भी तरह द्रव्य हिंसा या भाव हिंसा नहीं करेंगे, उन्हें तकलीफ नहीं देंगे, तो हमारे दुख आएगा ही नहीं। जितने भी दुख हमारे जीवन में आते हैं वो एक्शन का रिएक्शन है। बोलते ना, जैसा करोगे वैसा भरोगे। ये जैनिज्म का कर्मवाद, जिसे दर्शनवाद ने अपने हिसाब से कहा, समाजवादियों ने अपने हिसाब से कहा, किसी ने कहा जैसा बोओगे वैसा पाओगे, विज्ञान ने कह दिया एवरी एक्शन हैज गॉट इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, किसी ने कह दिया कि बीज बोया बबुल का तो आम कहां से खाए। बात सब एक ही है कि एक्शन का रिएक्शन है। व्हाट यू गिव कम्स बैक टू यू। दुख दिया, दुख मिलेगा। सुखी जीवन चाहिए, दूसरों को सुख दो, दूसरों की सेवा करो, दूसरों का सहयोग करो, दुख से दूर हो जाएंगे। धर्म संघ की सेवा करें। पहला नियम ये आ जाता है कि अगर हम किसी को हर्ट करेंगे, अगर किसी को किसी भी रूप में शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक स्तर पे किसी भी तरह उसको दुख देंगे, तो वो दुख लौट के अपने पास ही आएगा। मैं सारी बात बहुत प्रैक्टिकल शब्दों में आपको बताना चाहता हूं कि कहते हमारे प्रायोगिक जीवन में कैसे जैनिज्म उतर जाए, ये जैन धर्म की जिनवाणी हमारे जीवन में उतर जाए। तो मैं कर्मवाद को छोड़ के सीधा कर्मवाद का प्रायोगिक रूप बताता हूं कि दुख देना ही दुख पाना है, तो दुख न दें किसी को। दूसरा, देखिए बहुत बड़ी बात है, हमारे जैन धर्म में, मैं कहूंगा अपने जैन धर्म में सबसे बड़ा धर्म, उत्तम धर्म माना गया है क्षमा। क्षमा।
और एक बात क्या होती है कि अगर हमारे दुख का, हमारे विषाद का कोई ना कोई निमित्त बनता है, अगर कोई निमित्त बनता है जिसके कारण हमें दुख होता है, हमें दुख प्राप्त होता है, और हमने उस व्यक्ति को, उस निमित्त को क्षमा नहीं किया, तो क्या होगा? जब व्यक्ति को क्षमा नहीं किया तो वो जो एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी है, वो हमारे भीतर ही रह जाती है, और वो जब मैनिफेस्ट करती है तो बल्कि क्या होता है, वो शारीरिक कष्ट, वो मानसिक प्रताड़ना हमें भोगनी पड़ती है। तो सबसे उत्तम धर्म क्या है? क्षमा। जैसे हम दूसरों को क्षमा करते हैं, दूसरे पे एहसान करे या न करे, हम सबसे बड़ा भला अपना करते हैं, अपने लिए सुखी जीवन की एक, क्या बोलते हैं, निर्माण कर लेते हैं, एक उसका एक अपनी एक सतह बना लेते हैं। तो जैनिज्म दूसरा क्या कहता है? मित्ति में सब भुवेसु वैरम मज्जनम नकेणी, जिसको हम कहते हैं ना, थामे में सभ्य जीवे सभ्य जीवा कमंतु में, सबको क्षमा कर दें। क्षमा धर्म ही। जब तक हमें क्षमा करना नहीं सीखा, हमने जिन वाणी को नहीं समझा, और जिन वाणी को नहीं समझा तो सुखी जीवन जीने की कोई कला को नहीं समझा। तो दूसरा कलात्मक सूत्र है सुखी जीवन। किसी को क्षमा करके देखें, मन में कितना सुकून मिलता है, वो नेगेटिविटी निकल जाती है। तो क्षमा, तो उत्तम क्षमादन हमारे जीवन का एक दूसरा जैनिज्म का सूत्र है। तीसरा, आगे बढ़े थोड़ा सा क्विकली, तो देखिए पूरे संसार में अगर खोजा जाए कि एब्सोल्यूट क्या है, जिसको बोलते हैं एब्सोल्यूट, तो क्या होता है? सत्यम भैवम, सत्यम लोयम विसार भूयम। सत्य ही भगवान है, सत्य ही एब्सोल्यूट है, सत्य ही लोक में सारभूत है। तो जैनिज्म का तो आधार यही है कि सत्य है तो सब कुछ है, सत्य ही भगवान है। और हमारे जीवन में अगर देखा जाए तो दुखी होने का मूल कारण होता है, आध्यात्मिक दृष्टि से जिसे मिथ्यात्व कहते हैं, सामाजिक दृष्टि से जिसे झूठ कहते हैं। सांच को कभी आंच नहीं होती। सुखी जीवन का मैं कहूं सबसे पहला बिंदु, मैंने तो ये तीसरे स्तर पे लिया है, लेकिन लेना चाहिए पहले लेवल पे, कि जहां सुख चाहते हो तो सत्य का आधार लो। सत्यम भैवम, ये चोरी, झूठ, अप्रामाणिकता, छल कपट, ये इसी के प्रारूप है। जब आदमी सत्य का साथ छोड़ देता है तो ये सब पनपते हैं। वो क्या करेगा? चोरी करेगा, अप्रामाणिक हो जाएगा, अनैतिक हो जाएगा, और ये जितने भी हैं ये सारे उसके जीवन में दुख घोलने वाले हैं। सारे कोई ना कोई एक पॉइजन है, भावनात्मक पॉइजन है। तो हमें क्या करना चाहिए? जैसे एक छोटी सी कहानी आपको बताता हूं। एक चोर था, और एक बार वो चोरी करके भागता हुआ किसी संत महात्माओं के, कोई भगवंत के आश्रम में पहुंच गया और वहां छिप गया। साधु कुछ नहीं कहा, लेकिन इनडायरेक्टली उसको शरण मिल गई। पीछे जो राज्य के अधिकारी लोग आए, वो सोचे यहाँ तो संत बैठे हैं, आगे निकल गया होगा चोर, और वो बच गया। सुबह पहले जब वो चोर जाने लगा तो महात्मा जी ने कहा, महाराज ने कहा, तुमने रात में यहाँ शरण ली है तो कुछ तो तुमको दे के जाना पड़ेगा, गुरु दक्षिणा देनी पड़ेगी। उन्होंने कहा, कहिए महाराज क्या दूं? चोरी का जो सामान लाया हूं सारा आपको दे दूं? बोले नहीं, इसका तो मैं क्या करूंगा, मैंने तो सब पदार्थों को त्याग दिया है। तो बोले क्या दूं? बोले एक तो व्रत लेके जाना पड़ेगा, एक वचन दो। बोले क्या? बोले देखिए, चोरी तो मैं छोड़ नहीं सकता, मैं तो चोर हूं, यही मेरा धंधा है, तो चोरी का त्याग मत करवाइएगा, ये मत बोलिएगा कि आज से चोरी मत करना। बोला ठीक है, चोरी तुम जानो, तुम्हारा मानसिकता जाने, लेकिन एक कर दो कि तुम झूठ नहीं बोलोगे। बोले ठीक है, मैं पकड़ा ही नहीं जाऊंगा, तो झूठ बोलने का सवाल ही नहीं। शातिर चोर था कि मैं किसी को बोलूंगा ही नहीं, कि मैंने झूठ नहीं बोलूंगा। समय के अंतराल में एक बार देखिए परीक्षा की घड़ी आई और वो पकड़ा गया। बड़ा शातिर था लेकिन फिर भी पकड़ा गया, राजा के सामने प्रस्तुत किया गया। राजा ने पूछा, तुमने चोरी की?
अब झूठ बोलने का तो त्याग था, सत्य का सहारा लेना था। उसने कहा हाँ महाराज की क्यों की? अपनी स्थिति बताई, पारिवारिक स्थिति ऐसी है, घर में माँ बीमार माँ है, बहन है, छोटे भाई है, सबका पालन पोषण करना है, मेरे पास कोई व्यवसाय नहीं है, मेरे पास और कोई इनकम का साधन नहीं है, मुझे चोरी करना पड़ता है। तो तुमको मालूम है चोर, अगर तुम चोरी एक्सेप्ट करोगे तो मैं तुम्हें आजीवन कारावास दे दूंगा। हाँ मुझे मालूम है। तो तुमने क्यों माना, सत्य क्यों कहा? सारी घटना बता दी कि भगवंतों ने मुझे गुरु दक्षिणा ले ली थी। तो इसका मतलब तुम कभी भी झूठ नहीं बोलोगे? बोले नहीं। राजा इतना प्रसन्न हुआ कि जो व्यक्ति अपने क्या दंड मिलेगा उसको भी नहीं मान के सत्य का सहारा लिया, उसे अपना कोषाध्यक्ष बना लिया। कल तक का चोर आज राजा क्या कोषाध्यक्ष हो गया। जिनको खाने के बांधे थे उसके घर में 2 वक्त की क्या बारे न्यारे हो गए। ये सत्य की पहचान है। ये जैन धर्म है जो सिर्फ ये कहता है कि सुखी जीवन जीना चाहते हो तो सत्यम भैवम, सत्य ही भगवान है। और कुछ करो या न करो, जीवन में एक संकल्प लो कि मैं आज के बाद कभी झूठ नहीं बोलूंगा। और हमारे गुण स्थान के हिसाब से करें तो जो झूठा जो फॉल्सहुड है वही मिथ्यात्व है। पहला गुण स्थान ही है मिथ्यात्व का। तो अगर हम मिथ्यात्व को धीरे धीरे दूर कर ले तो धीरे धीरे क्या होगा, हम सत्य के सहारे आगे बढ़ेंगे। सुखी जीवन की नींव है सत्यता। आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जैन धर्म में भगवान महावीर ने एक बड़ा सुंदर शब्द कहा, या मैं कहूं पद्य कहा, उठिए नोपमाए। उठिए नोपमाए, अगर उठ गए हो तो प्रमाद न करो। तो ये प्रमाद क्या है और ये प्रमाद से हमारा जीवन दुखी कैसे बनता है? ये देखिए, प्रमाद आदमी के जितने भी कसाय हैं ये प्रमत्त भाव के कारण आते हैं। प्रमाद माने हमारे भीतर जो भी एक ज्ञान होता, हमारे भीतर जो भी अप्रमत्तता जो होती है वो विवेक शून्य हो जाते हैं, प्रमाद हो जाता है। एक तरफ का अहंकार मद। तो जब तक प्रमाद रहेगा तो भगवान महावीर कहते हैं क्षण भर भी, गौतम को भी कहा, गौतम क्षण भर भी प्रमाद मत करना। और हमारे जीवन में मैं बताता हूं सुखी जीवन का सबसे बड़ा व्यवधान होता है प्रमाद, ये मद, ये अहंकार। और जैसे ये प्रमाद भगवान महावीर के हिसाब से चले कि कोई प्रमाद न करो, तो प्रमाद कैसे नहीं होगा? अगर हम व्यसन नहीं करेंगे, नशा नहीं करेंगे। नशे के कारण आदमी प्रमाद करता है। नशे के कारण आदमी किसमें जाता है? अहंकार में जाता है, मद में। जो अष्टमद होते हैं, ओम नठठ मयठाणे पणठ कमठ नट संसारे परमठ निठियठे अठ गणाति सिरम वंदे। जब हम भगवान की स्तुति करते हैं तो यही कहते हैं, हे भगवान। कौन से भगवान? जिनके अष्टमद नष्ट हो गए हों। कर्म क्षण के पहले भी अष्टमद क्षय होने पड़ते हैं। तो जहां प्रमाद है वहां विवेक नहीं हो सकता, धर्म नहीं हो सकता, सुख नहीं हो सकता। और जहां प्रमाद नहीं है, अगर हम अपने जीवन से ये व्यसन, किसी भी तरह का व्यसन, ये जो नशा होता है, चाहे वो ड्रग्स का हो, ड्रिंक का हो, किसी भी तरह का नशा, चाहे स्मोकिंग का हो, निकाल दें। और जो 7 व्यसन होते हैं, व्यसन का त्याग कर दें कि हम ये 7 व्यसन हमारे जीवन में नहीं आएंगे, नहीं आने देंगे। तो आदमी का मैं कहता हूं 50% सुखी तो वो उसी दिन हो जाता है जिस दिन वो प्रमाद का त्याग कर देता है, 7 व्यसन का त्याग कर देता है। आप जानते होंगे 7 व्यसन, बोलने की जरूरत नहीं है, प्राय सभी जैन भाई हैं, फिर भी मैं बता देता हूं। ये आ जाता है कि शिकार, जुआ, चोरी, अवध्य खाना मतलब मद्य मांस का त्याग, स्मोकिंग, परिस्त्रीगमन, वेश्यागमन, और क्या बचा? नशा। ये 7 जो है, 7 व्यसन का त्याग जीवन में 50% गारंटीड, जिसको बोलते हैं ना रिजल्ट गारंटीड। अगर इन 7 व्यसन का हम त्याग कर देते हैं तो हमारे जीवन का 50% दुख
अपने आप ये हर लेता है। आइए थोड़ा इसके आगे कुछ और बिंदुओं पर बात करें। अब अपने आप आएंगे थोड़ा सा कि सुखी जीवन के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? स्वास्थ्य। बोलते हैं ना, पहला सुख निरोगी काया। तो स्वास्थ्य के लिए जैनिज्म क्या कहता है? अपना जीवन निरोगी रहे। हमारी भारतीय संस्कृति क्या कहती है? जैनिज्म क्या कहती है? जैनिज्म के द्वारा हम कैसे अपने जीवन को आरोग्य बना सकते हैं? तो जैनिज्म यहाँ सबसे पहले कहता है कि जैसा आहार वैसा व्यवहार, जैसा खाए अन्न वैसा हो मन। तो आहार शुद्धि से प्रारंभ करता है जैनिज्म। जैनिज्म कहता है आहार एक स्टोव के अग्नि की तरह है। जब तक नीचे अग्नि जलती रहेगी, पानी में कितनी बर्फ डालते रहो, पानी कभी भी ठंडा नहीं हो पाएगा, क्योंकि नीचे स्टोव चालू है। तो जब तक आहार शुद्धि नहीं होगी, अब जिसको कहते हैं, मेरे व्यसन में भी आया, जो अभक्ष है उसे नहीं खाना। पूरा विश्व आज विगन बन रहा है। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे खाली वेजिटेरियन होना जरूरी नहीं है। धीरे धीरे एक किसी भी तरह जो अभद्य है, आहार प्रज्ञा में आता हमारे आगम में कि हम पचेंद्रिय जीव है, मनुष्य है, वनस्पति को छोड़ के किसी की भी खाना हमारे लिए प्राकृतिक नहीं है। प्रकृति का यही नियम है कि हम वनस्पति खाएं, हम वनस्पति खाएं। तो क्या है, वनस्पति के अलावा अगर हम कोई भी अभक्ष्य खाना खाते हैं जो हमारे लिए खाने हेतु नहीं है, तो हमारे स्वास्थ्य को खराब करेगा। हमारा आहार जैसा होगा वैसे ही हमारा व्यवहार हो जाएगा। तो जैसे कहते हैं ना, हेल्थ इज वेल्थ। तो हेल्थ को सुधारने के लिए हमारा आहार हित हो, मित हो और सात्विक हो। और जब तक आहार शुद्धि नहीं होगी, हमारे जीवन में कहीं भी शुद्धता नहीं आ पाएगी। और इसी आहार शुद्धि के बाद इसी से जुड़ा हुआ दूसरा सूत्र है विचार शुद्धि। जहां शारीरिक आहार शुद्धि हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को बनाता है, हमारे शारीरिक संगठन को मजबूत करता है, हमारे स्वास्थ्य को देता है, वैसे विचार शुद्धि कि हमारी चेतना कहाँ केंद्रित है, हमारे विचार कैसे हैं। तो विचारों की जब तक शुद्धिकरण नहीं होगा, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थॉट्स, विचारों का जब तक क्या कहते हैं कि विशुद्धता नहीं रहेगी, तो क्या होगा? मैक्सिमम कर्म बंधन का कारण होता है विचारों की अशुद्धि। हम अपने विचारों के कारण कर्मों का बंध बांध लेते हैं। तो विचार के लिए अपने कहते हैं ना, यू आर व्हाट यू थिंक। तो क्या करें? जैनिज्म कहता है सकारात्मक सोच, क्योंकि सकारात्मक सोच अहिंसा है, निषेधात्मक सोच हिंसा है। तो हमारे विचारों के ही हम हिंसा कर लेते हैं। काया से कुछ नहीं किया, लेकिन जैसे विचार आए, इसको बोलते हम भाव हिंसा। तो जब तक अगर हमारे मन में ये विचार हो कि सबका मंगल हो, सब सर्व मंगल मांगल्य, सबका मंगल हो और हम दूसरे भी सुखी रहें और हम भी सुखी रहें, हम किसी का अहित नहीं करें, विचारों में सौम्यता, सरलता, जो सहिष्णुता, अगर ये सब रहें, मानवीय एकता, किसी के प्रति द्वेष घृणा नहीं रहे, तो कहीं कैसाई भी नहीं रहेंगे और दुख अपने आप दूर चला जाएगा। जिसे एक जगह आता भी है, भावे विरत्तो भणुओ विशोगो, यानी शुद्ध भाव से व्यक्ति विशोक बन जाता है, शोक रहित बन जाता है। तो जहां हमने अभी आहार शुद्धि और विचार शुद्धि की बात की, तो अब विचार के बाद भाव शुद्धि भी आता है। और भाव शुद्धि में सबसे पहले मैंने लिया है अभय। आदमी को सबसे पहले दुखी किसके कारण होता है? अभी कोरोना आया, आपको मालूम होगा ज्यादा लोग किससे मरे? कोरोना की बीमारी से मरे कि कोरोना के भय से मरे? आदमी दुख किससे पाता है? भय से। अगर बिजनेसमैन है तो नुकसान नहीं हो जाए इसका भय, अगर कहीं जाता है तो मेरे साथ कोई अशुभ नहीं हो जाए इसका भय, मेरी तबीयत खराब नहीं हो जाए इसका भय, मुझे कोई धोखा नहीं दे दे इसका भय, मेरे किसी प्रिय व्यक्ति का वियोग नहीं हो जाए इसका भय। ये भय सबसे बड़ा एक भावनात्मक दोष है जो हमारे जीवन को हमेशा एक तलवार की भांति लटकता रहता है और हम दुखी होते रहते हैं। आवश्यकता है इस भय को निकालने की, निडर बनने की। तो क्या करें? अब जैनिज्म क्या कहता है?
जैनिज्म में क्या कहता है? जैनिज्म में कहता है मत्त द्विपेंद्र मिगराज दवान लाही संग्राम वारीति महोदर बंधनोत्तम तस्याशु नाश मुपयाति भयम भीव। यानी वो सारे भय भी भयभीत होके नाश हो जाते हैं। ये स्तावतम स्तवमिमम मतिमान अधीते, जो भगवान की स्तुति करता है। मत्त द्विपेंद्र मृगराज दवान लाही, ये 8 तरीके के भय, ये कहते हैं तस्याशु नाश मुपयाति भयम भीव ये स्तावतम स्तवमिमम मतिमान अधीते, कि जो मतिमान, जो व्यक्ति भगवान की स्तुति करता है उसके सारे भय दूर हो जाते हैं। अगर हमें मालूम पड़े कि हाँ भाई ठीक है, हमारे साथ मोदी जी का सहयोग है, हम अमित शाह को डायरेक्टली जानते हैं, हम भद्रेश भाई को जानते हैं, तो हमारा कोई अहित कर ही नहीं सकता। कौन करेगा? किसकी हिम्मत है? तो कहने का मतलब कि अगर हम भगवान से कनेक्टिविटी जुड़ी रही हमारे गुरुओं के प्रति, गुरु की शरण है, शरण तिहारे शरण तिहारे शरण तिहारे रे, हम भगवान की शरण में है, गुरुओं की शरण में है, तो हमें भय लगेगा ही नहीं। तो अभय की जब हम अनुप्रेक्षा करते हैं, शरणागति चले जाते हैं, भगवान की शरण में चले जाते हैं, तब हमें किसी तरह का भय नहीं लगता। और जब भय नहीं किसी का भी, तो कोई दुख नहीं। भय दुख का सबसे बड़ा कारण होता है, भय, चिंता। और जो आदमी भयभीत नहीं होता उसकी कोई चिंता नहीं होती, और वह हमेशा अपने जीवन में सुखी ही सुखी रहता है और अभय होके एकदम निश्चिंत होके घूमता है। जैसे अपने बंबई में, भद्रेश भाई आपको बताऊं, बंबई में पहले क्या होता था, शिवसेना का झंडा लगा लो, बाला साहब ठाकरे का, और कहीं भी जाओ किसी की ताकत नहीं, कोई ट्रैफिक पुलिस वाले की ताकत नहीं कि आपकी गाड़ी को रोक दे, वो झंडा अपने आप में। तो आपके साथ गुरुओं की शरण का झंडा होना चाहिए, जैन धर्म का झंडा होना चाहिए, तीर्थंकरों के नाम का झंडा होना चाहिए। मन में ये भाव होना चाहिए कि भाई मैं गुरुओं की शरण में हूं, मैं तीर्थंकरों की शरण में हूं। आइए थोड़ा और आगे चलते हैं, 1-2 पॉइंट, समय है 10 मिनट, तो मैं आपको 2-3 पॉइंट और बता देता हूं। 7 पॉइंट हुए, कम से कम 3 पॉइंट तो बनते ही हैं। एक है, एक शब्द आता है कि दुख के मूल कारण क्या, तो इतने कारण बताए, लेकिन दुख का एक और कारण बताया जिसका नाम है अज्ञानता। मिथ्यात्व किसको बोलते हैं? अज्ञानता। जो अज्ञानी है वो दुखी है, और जो ज्ञानी है वो सुखी है। जिसको अज्ञानता है वो रस्सी को भी सांप समझ के डरता रहेगा। डर है तो दुख है, क्योंकि अज्ञानता है। क्या होगा? तो जिसको कहते हैं नाणम पयासैरम, कि ज्ञान प्रकाश करने वाला होता है, और जो अज्ञानता होता है बंधन का मूल कारण, दुख का मूल कारण होता है अज्ञानता। तो हमारे जैन धर्म में सबसे पहले बोलते सम्यक ज्ञान, ज्ञान होना जरूरी है। बोलते तत्वार्थ सूत्र में भी उमा स्वाति जी ने लिखा ना, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है। तो ज्ञान होना तो बड़ा जरूरी है। और एक जगह और भी आता है अपने के, जिसमें कहा अन्नान मोहस्य विवज्जनाए, यानी अज्ञान और मोह के क्षय होने से एकांत सुख की प्राप्ति होती है। जब तक अज्ञानता है दुख रहेगा। उस अज्ञानता को दूर कैसे करें? अब जैन धर्म क्या बोलता है? अरे श्रुत की आराधना, साधु संतों के प्रवचन सुनिए, स्वाध्याय करिए, सत्संग करिए, ज्ञान होगा। ज्ञान कहां से आएगा? श्रुत से। श्रुत ज्ञान, श्रुत ज्ञान में अब और कोई ज्ञान तो हो नहीं सकता। श्रुत का ज्ञान तो भगवंतों के जो प्रवचन होते हैं उन्हें जानिए। भद्रेश भाई ने यह पर्युषण व्याख्यान माला का आयोजन किया है। एक एक व्याख्यान माला के एक एक वक्तव्यों को सुनिए, कुछ तो जानकारी होगी। जब इन्होंने इतने बड़े बड़े वक्ताओं को बुलाया है, हाँ मेरा भी नंबर आया उसमें, लेकिन उनसे उनकी बात सुनेंगे। भगवान महावीर की वाणी, जो भी वक्ता हो, भगवान महावीर की वाणी ही किसी न किसी रूप में आपके सामने प्रस्तुत करेगा। तो भगवान महावीर की वाणी को सुनना ही अज्ञानता को दूर करना है, इसके अलावा कोई दूर नहीं हो सकता। तो इसके लिए स्वाध्याय करें, प्रवचन सुने, श्रुत की आराधना। कहते हैं बोधि प्राप्त होने के लिए भी मनुष्य का जीवन जो में मूल चुका, दूसरा है श्रुत। तो श्रुत की आराधना करेंगे तो आगे श्रद्धा में और संयम में पराक्रम कर पाएंगे। जब तक श्रुत की आराधना नहीं करेंगे तब तक
नाणम पयासैरम के सूत्र को अपने जीवन में नहीं उतार पाएंगे। तो इनमें निगथम पायणम सत्यम, यानी निर्गत प्रवचन ही सत्य है, सुखकारी है। ये अपना हो गया 8वां पॉइंट। 2 पॉइंट तो और बनते हैं। 9वां पॉइंट आपको बताता हूं, घड़ी मेरे सामने है, समय का अतिक्रमण नहीं करूंगा। दूसरा होता है, हर एक आदमी जीवन में समृद्धि चाहता है। भौतिक युग, जब भौतिक युग है तो अबंडेंस भी चाहिए, संपत्ति भी चाहिए, सुख वैभव भी चाहिए, भौतिक सुख भी चाहिए। तो क्या हमारा ये जैन धर्म सिर्फ आध्यात्मिक सुख देता है? क्या भौतिक सुख की प्राप्ति जैन के द्वारा नहीं प्राप्त हो सकती? अरे मालकिन जो है पद्मावती देवी, वो जैन धर्म की है, वो पार्श्वनाथ की अधिकारिता है। तो अगर जैनिक और जितने भी बड़े बड़े चक्रवर्ती होते थे, धनाढ्य व्यक्ति होते थे, कौन होते थे? कौन होते थे? सब जैनी होते थे। पुराने राजा लोग भी अपने मंत्रियों को जैन रखते थे। जितने चक्रवर्ती जैन हुए, कोई दूसरा हुआ ही नहीं है। तो अगर जैनी होके भी अगर बैंक बैलेंस करोड़ों में नहीं है, तो आप सही मायने में जैन नहीं है। जैन वही होता है जिसकी बैलेंस शीट 9 फिगर्स में जाती है। आपको तरीका नहीं आता तो मुझसे अलग से मिलिए, मैं आपको बताता हूं क्या करना चाहिए। यहां तो मैं इतना बता सकता हूं, हमारे पास ऐसे ऐसे मंत्र हैं। हमारे पास आज तीर्थंकरों की स्तुति जो होती है, लोगस की जब हम स्तुति करते हैं, चंदेसु निमल्लैरा आइचेसु अय्यम पयासैरा सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धि मंद संतु, या पार्श्वनाथ भक्तामर में अगर आप देखिए, मानतुंगाचार्य ने क्या कह दिया, स्तोत्र स्त्रजम तव जिनेन्द्र गुणेन्नि भक्ताम भक्त्या मया रुचिर वर्ण विचित्र पुष्पाम धत्ते जनो यह कंठ गता मजस्त्रम तम्मान तुंग मवसा समुपैति लक्ष्मी। अगर भक्तामर का पाठ करने वाले के घर में लक्ष्मी नहीं आई, पद्मावती का मंत्र पढ़ने वाले के घर में अगर लक्ष्मी नहीं आई, तो लक्ष्मी कहां? क्या कोई सरदार जी के घर जाएगी? अब बताइए। लक्ष्मी तो, पद्मावती तो जो भगवान महावीर की स्तुति करता है। ऐसे ऐसे मंत्र हैं जैन धर्म में। आज आपको एक बात और बता दूं कि जितने भी भगवान महावीर के शासन काल में 9 व्यक्तियों को तीर्थंकर गोत्र बंधा है, जिसमें 7 तो श्रावक थे, और जो भगवान महावीर के 10 मुख्य श्रावक हुए, जो आज पहले देवलोक में है, सब एका भवतारी है। तो भगवान की स्तुति करने वाले, उनके घर में कभी माया की कमी हो ही नहीं सकती। भगवान महावीर का अर्थशास्त्र मनुष्य को फकीर नहीं बनाता, बल्कि उसे राजा बनाता है, चक्रवर्ती बनाता है, धनाढ्य बनाता है। लेकिन आवश्यकता है सम्यक आजीविका, कि पैसा कमाने में कहीं अप्रामाणिकता नहीं हो, कहीं किसी का नुकसान नहीं हो। अगर दूसरे का 1 पैसे का नुकसान और हमारा 1 करोड़ का फायदा, जैन धर्म उसकी आज्ञा नहीं देता। दूसरे के नुकसान पे खुद का फायदा नहीं करना है। 15 कर्मादान का काम नहीं करना है। जिससे 6 काय जीवों की हिंसा होती है, वो व्यापार नहीं करना है। तो उसके कुछ नुस्खे हैं। अगर नुस्खों को माना जाए तो चक्रवर्ती है ना। कौन कहता है कि हाँ भाई जैनिज्म में तो ऐसे सूत्र भरे पड़े हैं। और आगे थोड़ा आगे चलते हैं, एक बात और बताता हूं लास्ट में, जिसको अगर उसको उस पॉइंट को नहीं बताया तो पूरा जैनिज्म अपने आप में अधूरा लगेगा, जिसका नाम है संयम खलु जीवनम। संयम ही जीवन है। सुखी जीवन का कोई कहे एक मात्र सूत्र, तो मैं कहूंगा संयम। क्या चीज का संयम? वाणी का संयम, व्रत चेतना का विकास। जितनी जितनी भौतिकता के प्रति, इच्छाओं के प्रति लालसा, कामना, वासना बढ़ती है, परिग्रह बढ़ता है। त्युट्टटेज्जा, भगवान महावीर ने कहा पहले अपने बंधन को जानो और फिर उसे तोड़ो। बंधन का मूल कारण है परिग्रह। आता ही रवे, आता ही रवे। क्या आता ही रवे? क्या परिग्रह? उस परिग्रह को छोड़ो। बोलो सुखी कौन? जिसके
शरीर पे शर्ट नहीं होनी चाहिए। अगर ब्रांडेड शर्ट है माने अभी वो उसके लिए दिल्ली दूर है। फकीरी का जीवन जी के देखो। महाराज कौन होते हैं? जो राजाओं के राजा होते हैं, महाराज, जिन्होंने सब कुछ त्याग दिया, उन्होंने सब कुछ पा लिया। तो व्रत चेतना का विकास जब तक होगा आदमी के जीवन में, चाहे अणुव्रत के रूप में, चाहे 12 व्रत के रूप में, और साधु संतों के लिए अगर पंच महाव्रत का पालन कर लिया तो उसकी तो बात ही क्या है। तो जैसे जैसे जीवन में छोटे छोटे व्रत आएगा, मैं किसी का नुकसान नहीं करूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, मैं वो नहीं करूंगा, छोटे छोटे व्रत आते हैं जो अणुव्रत के माध्यम से, हमारे गणाधिपति ने अणुव्रत के माध्यम से एक बड़ा एक क्रांति चालू की थी कि नियम बनाए थे अणुव्रत के, छोटे छोटे व्रतों के द्वारा। तो जब व्रत चेतना का विकास आएगा आदमी के जीवन में, और 12 व्रत तो इतनी बड़ी एक क्या बोलते हैं नियमा है कि आदमी अगर 12 व्रत को अपने जीवन में धारण कर ले तो क्या मालूम कितने कितने, मतलब सागर जितना पाप कटोरी में आ जाता है, कर्म बंधन कम हो जाते हैं। ये हमारे 10 पॉइंट मैंने आपको दिए, जितना समय भद्रेश भाई ने दिया था, कि ये मूल पॉइंट्स है जो हमारे जीवन में सुख प्राप्ति करवा सकते हैं। दुख का कहीं कोई सार ही नहीं, दुखी दुखी खेलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब सुखी सुखी खेलेंगे। इन 10 नियम को तो माने। इसी के साथ में आप सबका बहुत बहुत आभार। कुछ बाकी रह जाता है ये तो फरमाइए। हाँ भद्रेश भाई, कुछ बाकी रह जाता है तो जरूर फरमा लीजिए। नहीं नहीं, इतना बोलते ना, अगर ये 10 पॉइंट भी जीवन में उतार ले तो बाकी अगले साल फिर पर्यूषण माला होगी आपकी, तो उसमें फिर बता देंगे। लेकिन इन 10 पॉइंट में मैंने गागर में सागर भरने की चेष्टा की है। अभी अपने इनको जाने समझे, और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आपने मुझे बुलाया, सुना, समझा, और भगवान महावीर के वाणी को कह के मेरी जिह्वा सफल हो गई, मेरा समय सफल हो गया, धन्य हो गया। सबके प्रति बहुत बहुत मंगल कामना। खूब खूब आभार। અને અદ્ભુત સ્પેલબાઉન્ડ एक कंप्यूटर होने के नाते आपने आपको सही में जो समय दिया था उससे पहले 1 मिनट, वैसे तो हमने आपकी 10-15 मिनट तो हमने ही ले ली है, कोई खास बात नहीं। फिर भी आपने संतुलन बनाया और आपने सही तरीके से जो 9:30 का टाइम था उसमें आपने आपका बात ने जो हिसाब से कहना चाहिए वो कह दिया। ये सब मिलके जो जीना जिए वही आर्ट ऑफ लिविंग है। हाँ, बहुत ठीक बात। बाकी आपका जो आपका एक जो शब्द हुआ वो जरा थोड़ा, मैं पहले तो चौंक गया कि करोड़पति का बैंक बैलेंस होना चाहिए, लेकिन ये सब शर्तों के साथ वो पैसे का यूज करना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, यानी पैसे से बड़े हो जाके बड़े ही रहना ऐसी बात नहीं है। वो आपने फिर आपकी दूसरी पल में उसको बता दिया, तो आपकी बात सही हो गई और खूब हमने कुछ पाया है इसमें। खूब खूब धन्यवाद, खूब खूब आभार दिलीप भाई। आपसे हम सूरत में कभी रूबरू मिलेंगे और रूबरू बात करेंगे। आपकी वो डिग्रिया की बात बाकी है, वो भी करेंगे। अच्छा, ठीक है। अभी जो हमारे ભદ્રેશભાઈ આપનો માઇક બંધ થયું છે। ભદ્રેશભાઈ